algorithm. We use Viterbi algorithm for the purpose of decoding of the convolution code, right? And the principle on which this Viterbi algorithm works, it is maximum likelihood decoding, right? It is maximum likelihood decoding. So maximum likelihood decoding means this algorithm will basically try to find out the nearest possible decoded bit, right? Nearest possible decoded bit. So this concept will use in the Viterbi algorithm, and this algorithm is popularly used for the purpose of convolution code decoding, right? Convolution code decoding. Fine. So now we should see example that how we'll do this process. So for that I should again see this trellis diagram, because Viterbi algorithm will work on this trellis diagram. So it is very clear that what we have to do, first we have to draw the trellis diagram for any convolution encoder, and then we'll try to solve. If you use this trellis diagram at the side of receiver, then you will have some received bits, and with the help of those received bits, you have to uh, use this Viterbi algorithm for the purpose of decoding, right? And see, this is very clear that when we are having input is 1 bit and the output is of 2 bit. So the rate of this code, which can be named as code rate, it can be equal to 1 by 2, right? We know that it is formula is k by n, where k is number of bit and n is number of coded bits, right? So number of coded bits are 2, number of input bits is 1, right? So the code rate of this convolution encoder or this trellis diagram is 1 by 2. So this is half rate convolution encoder or decoder, whatever, right? Now how we'll do this, how this process will basically will do for the purpose of decoding, right? Now we have to say, so first what we are considering some input or some received bits. So for example, we are having the received bits, means this is the information which we have received at the side of receiver. So the received bits are 1 1 1 0 1 1, and there may be some a long length, right? But I am only interested in these 3 bits. Why? Because we have to understand the concepts uh, in detail. So that's why I'm not going to for the long data length. So I will be interested only for these 3 groups of bits, 1 1 1 0 1 1, and I'll try to solve the decoded bit for these 3 group of bits, and then definitely we can go for the long data length, right? So we can start with this 1 1 1 0 1 1. This is a received bit. So again, the thing is very simple. That we in the communication system, normally we are having some transmitted bits, right? So for example, you can have 1 1 0 1 1 1 0, like this. You can have any transmitted bit, and then this transmitted bit will be cross with this channel, and then you will have a receiver, and at the side of receiver again you will receive some bits, right? 1 1 0 1 kind of things. Now this is your receiver. I was saying that for example, if we are having some received bits like 1 1 0 1 0 0 0 1 1, right? Because the code rate is half, so it should be very clear that the group of 2 bit will denote the single transmitted bit, right? So the group of 2 bit will denote the single transmitted bit. If we are having code rate is 1 by 3, then the group of 3 bits will tell us about the single transmitted bit, right? So that's why this is clear to me
that in the trellis diagram, whatever the number of bits I am receiving, I have to write these received bits in a group of 2 bit. For example, again I am writing that this is the received bit 1 1 1 0, and the third group of bit is again 1 1, right? So at the side of receiver you are receiving 1 1 1 0 1 1, but on the trellis diagram how will write these these bits? So we know that for every column, right? For example, this is column, first column, right? This is second column, right? And then this you can have, this is your third column. So for every column you will write the group of 2 bit, right? So for example, why I'm saying it, for example, at the side of receiver I am writing 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0, right? So in this case, how you will write these bits on this trellis diagram? So we got to know that if the code rate is half, then I will make the group of these 2 bits, and I will put these 2 bits in the first column. Then this is the group of 2 bit. I will put this second column, this group of it in the second column, and likewise, right? I'll put all those, I will fill all those columns. So in this way, you will write this these all bits on the trellis diagram for the purpose of decoding. Now decoding will have 2 objectives. First, that these received bits either, means first thing is what, that either I received these bits correctly or not, right? So first point is what, that either the bits are correctly received or not, first thing. And the second thing is what, that what is the transmitted bit according to these received bit, right? What was the data which was transmitted from the transmitter side? So we have to decode these two things, right? So okay, so we can start with this figure of trellis diagram. Again, this trellis diagram is already explained to you. I have written down all these group of bits. Now what I have to see, for example, I have to analyze for these 3 group of bits. So this can be your end node, this can be your end node, okay? So these can be your end node, these can be your end node, this column will be the last column for you, fine? So what you can do, first name these all nodes, right? First name all these nodes. For example, this is node A1, this is A2, this is A3, this is A4, right? Then for example, you can name this B state as, I'm starting with B2 because I don't have this B here, I don't have any node here. So that is why I am starting this node from B2, B3 and B4. You can give any name, right? It is immaterial, nothing to do with the technical concept. You can name it C3, C4. You can name it D3 and D4, right? So you named all these nodes for the purpose of simplicity. Now see, whenever you start decoding, you have to look this node, these all nodes, right? For example, when I see this A4, right? When I see this A4, I have to see that how many paths are coming to this A4. So you can see here, this is first path which is coming to A4, and this is second path which is coming to A4. Same thing I have to repeat for every node, right? I have to look at how many paths are coming to this node. So each and every time you will get 2 paths which are coming to the every node, right? So for example, if you talk about this node, हाँ शुभम बताओ बेटा. सर आपने जो ये 111011 लिया था, ये किस बेसिस पे लिया था? ये रिसीव्ड बिट है. ये बेसिकली एट द साइड ऑफ रिसीवर, मेरे रिसीवर ने रिसीव किया है. अब ये रिसीव करने के बाद ये तो कन्वोल्यूशन कोडेड आउटपुट आया ना मेरे पास. अब मुझे इसको डिकोड भी तो करना है कि एक्चुअली ट्रांसमिटेड बिट क्या रहे होंगे. तो कोडेड बिट्स हैं. सो मैंने क्या किया, बिकॉज माई कोड रेट इज हाफ, तो इसका मतलब जो भी बिट्स मुझे रिसीव हो रहे हैं, मुझे पता चल रहा था कि जो 2 बिट आ रहे हैं वो बेसिकली 1 बिट के बारे में बता रहे हैं. तो मुझे 1 बिट ही तो चाहिए वो जो ट्रांसमीटर साइड से भेजी गई है, जो ओरिजिनल बिट है. ये आपने रैंडम लिया है? रैंडम लिया है, इसका कोई ओके लॉजिक नहीं है. ये रैंडमली लिया है, कोई भी रैंडम रिसीव बिट हो सकता है. ठीक है. हाँ.
अब मैंने क्या किया, इस नोड को देखा, इस नोड पर दो ब्रांचेस आके टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, इन इस पहले वाले नोड के लिए पाथ लिख लूंगा, राइट। सो आई कैन राइट डाउन A1, A2, A3, A4. This is for node 1, right? Similarly, I can write down the second path for this node A1, B2, C3, and this one, right? A4, right? Fine. So I can write down A1, B2, C3, and A4. This I have completed with for this first node. Fine. Now see what I have to do. I have to calculate two things. One is कोड सर वेट, जैसे हम लोग क्या थे, हेमिंग वेट निकालते थे, डिफरेंस इन बिट्स, डिफर है ना, जो डिफरेंस होता था बिट्स में। सो फॉर एग्जांपल हम कैसे निकालते हैं, ये रिसीव्ड बिट है, ध्यान से देखो, ये रिसीव्ड बिट है और इस पाथ का ये स्टैंडर्ड आउटपुट है 00। सो कितना बिट का डिफरेंस आ रहा है, 2 बिट का। सो मैं इसको ऊपर लिख लूंगा, यहाँ पर A1 A2 के बीच में 2 बिट का डिफरेंस है। फिर A2 और A3 वाले पाथ में ये 10 रिसीव्ड बिट है और स्टैंडर्ड जो आउटपुट है वो 00 है। तो इन दोनों के बीच में कितनी बिट का डिफरेंस है, 1 बिट का। तो A2 A3 में 1 बिट का डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब डिफर डिफर डिफरेंस मतलब घटाना वाला, सब्ट्रैक्शन नहीं है। डिफरेंट मींस बिट्स कौन कौन से डिफरेंट है। तो आप देखो ना 10 0 0, तो 00 तो सेम हो गया, 10 में 1 बिट का डिफरेंस हो गया, है ना। फिर A3 से A4 में आएंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट 1 1 है और यहां पर देखो क्या है 0 0। तो कितने बिट डिफर है, 2, राइट। सो A3 से A4 में 2 बिट डिफर है, ये होते हैं वेट, राइट। अब मुझे इन सबको ऐड कर देना है, ये बन जाएगा पाथ मेट्रिक। सो 2 2 4 1 5। सो पहले पाथ का मेट्रिक आ गया 5, बोलो सही है। सो मैंने 2 पाथ लिख लिए। अब पहले पाथ का कोड वेट निकाला, फिर कोड वेट से उस पाथ का मैट्रिक निकाल लिया, ठीक है। सिमिलरली अब मैं सेकंड वाले पाथ को देखूंगा। अभी थोड़ा लंबा लग रहा है, जब एक बार हैबिट हो जाएगी तो फिर बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा ये। अभी मैंने फिर वही काम करना है, सेकंड वाले पाथ में ये वाला पाथ है मेरा, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि इसमें जो आउटपुट है वो 1 1 है और जो रिसीव्ड बिट थी वो भी क्या है 1 1। तो डिफरेंस कितने का हुआ, 0 का। सो A1 और B2 में 0। सिमिलरली B2 और C3 में यहां मेरे पास 1 0 है और स्टैंडर्ड जो मेरा रिसीव्ड बिट रिसीव किए हैं वो कितने 1 0। डिफरेंस कितने का है, 0। और C3 और A4, ये लास्ट वाला C3 और A4। तो C3 और A4 देखो कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ध्यान रखना C3 और A4, राइट। 0/1 1। सो 1 1 इज द स्टैंडर्ड आउटपुट और रिसीव्ड बिट इज 1 1, ठीक है। रिसीव्ड बिट इज 1 1, ठीक है बेटा, कोई गड़बड़ तो नहीं है। 1 1 1 0 और 1 1। सो रिसीव्ड बिट इज, sorry, received bit, the code bit is 0, right, 0 जोड़ देंगे तो पाथ मैट्रिक क्या आ रहा है, 0, राइट। तो ये आपने किसकी एनालिसिस कर ली, पूरी A4 की। नाउ यू हैव टू डू द सेम एनालिसिस फॉर B4, फॉर C4 एंड फॉर D4, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द पाथ व्हिच इज हैविंग मिनिमम पाथ मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना है, ऐसे करके सबका निकालेंगे। तो 0, हाँ बोलो। I should go for the purpose of decoding। अब डिकोडिंग क्या, बहुत सिंपल हो गया कॉन्सेप्ट, है ना। जो स्टैंडर्ड आउटपुट लिखे हैं यही कलेक्ट कर लो वापस। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या लिखे हैं, 1 1 1 0 और 1 1। तो आप देखेंगे जो रिसीव्ड बिट है और जो डिकोडेड बिट है वो बिल्कुल सेम, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि जब मैं इस पाथ से चल रहा हूं तो इनपुट क्या है 1। तो ट्रांसमिटेड बिट इस 1 के लिए क्या रही होगी, 1 रही होगी। जब मैं इस पाथ से चल रहा हूं तो इनपुट बिट क्या है 0। तो ट्रांसमिटेड बिट क्या रही होगी 0। जब मैं इस पाथ से चल रहा हूं तो इनपुट बिट क्या है 0। तो ट्रांसमिटेड बिट क्या रही होगी 0। तो जो ट्रांसमिटेड डेटा हो रहा होगा वो क्या रहा होगा 1 0 0। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक रिसीव्ड बिट है मेरे पास, इस बार मैं रिसीव्ड बिट को लेता हूं 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। ये रिसीव्ड बिट है, फाइन।
और मुझे क्या करना है, अब मुझे जो फर्स्ट मुझे इस ट्रेलिस डायग्राम के थ्रू रिसीवर के बिट्स जो रिसीव्ड एग्जैक्ट रिसीव्ड बिट्स हैं वो निकालने हैं और फिर उनकी हेल्प से मुझे ट्रांसमिटेड बिट निकालने हैं। सो मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, है ना, मैं इस 1 1 को भी हटा देता हूँ, है ना, हम केवल इस नोट तक बात करेंगे, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। सो हम लोग क्या करेंगे, ये मान लीजिए 2 बिट मैंने रिसीव किए हुए हैं, 0 1 और 1 0। तो ये वाला जो नोड है ये लास्ट नोड है आपका, ये वाला नोड भी लास्ट नोड है और ये वाला नोड भी लास्ट नोड है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस नोड पर देखना है कि मेरे पास कितने पाथ आ रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पर केवल सिंगल पाथ आ रहा है, राइट। सो इस पाथ को ये नोड को अगर नाम दे देते हैं A1 A2 A3, इसको दे देते हैं B2 B3, इसको दे देते हैं सिंपल C3, राइट, सॉरी C2 है ना, हाँ C3, ठीक है। सो पहला पाथ क्या होगा, A1 A2 A3, राइट। इस वाले नोड के लिए बात करें, मैं थर्ड नोड के लिए बात कर रहा हूँ, इस वाले नोड के लिए, इसका नाम A3 रखा हुआ है, इसमें केवल एक पाथ है A1 A2 A3, राइट। और कोई दूसरा पाथ आ नहीं रहा है तो इसमें केवल एक ही पाथ है। फिर मैं दूसरे नोड पे चला जाऊंगा विच इज B3, B3 के पास भी एक ही पाथ है A1 A2 B3, A1 A2 B3। अब मैं इस वाले नोड के पास आ जाता हूँ C3, इसके पास भी केवल एक ही पाथ है, सिंगल एरो यहाँ पर आ रहा है, राइट। बैक ट्रैक करेंगे, सो A1 B2 C3, राइट, A1 B2 C3। मैंने जितने पाथ से सारे लिख लिए। अब मुझे निकालना है वेट और मैट्रिक, राइट। वेट कैसे निकलता है, जिस पाथ के अलॉन्ग आप देख रहे हो A1 A2 A3, सो आप इस पाथ पे आ जाओ। इस पाथ पर देखो जो बिट रिसीव की थी और जो स्टैंडर्ड आउटपुट होना चाहिए था, उन दोनों में कितने बिट चेंज है वो हमें काउंट करनी है। सो 0 1 और 0 0 के हिसाब से कोड वेट कितना होना चाहिए, मुझे कौन बताएगा? 1। वेरी गुड, वेरी गुड। कोड वेट शुड बी 1। तो मैं यहाँ ऊपर साइड में लिख लेता हूँ 1, A1 और A2 के बीच में 1, A2 और A3 के बीच में कितना होगा कोड वेट? 1। वेरी गुड, ये 1 आ गया। इन दोनों को मुझे क्या करना है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है। सो ये कितना आ जाएगा 2। सो 2 इज द पाथ मैट्रिक फॉर A1 A2 A3, राइट। अब मैं क्या सेकंड वाले नोड पर जाता हूं, वहां पाथ है A1 A2 B3। सो A1 A2 में देखो जो रिसीव्ड बिट है स्टैंडर्ड वो 0 0 है, और सॉरी जो रिसीव्ड बिट है वो 0 1 है और स्टैंडर्ड 0 0। तो कितने बिट का डिफरेंस है, डिफर है, ये चेंज है 1, राइट। कोड वेट इज 1। फिर इस वाले पाथ पे आओ A2 और B3, A2 B3 में स्टैंडर्ड क्या है 1 1, मिल क्या रहा है 1 0, तो कितने बिट का चेंज है 1, राइट। कितना पाथ मैट्रिक आ गया 2, ठीक है। फिर आते हैं इस पे C3 पे, ठीक है। C3 में 1 1 और 0 1, कितना आ गया 1 A1 B2 में, और B2 C3 इज 1 0 और 1 0, तो कितना आ गया 0। तो पाथ मैट्रिक कितना आ गया 1। सो टोटल वी वर हैविंग 3 पाथ्स, उनमें सबसे छोटा कौन सा आया A1 B2 C3, ये वाला। इसका मतलब ये वाला पाथ है मेरा फाइनल पाथ, ठीक। सो डिकोडेड बिट्स क्या होंगे, डिकोडेड बिट्स विल बी 1 1 1 0, 1 1 1 0। लेकिन रिसीव्ड बिट क्या थे, रिसीव्ड बिट थे 0 1 1 0। इसका मतलब एक बिट में एरर है ना। ये देखो 3 बिट तो सेम है 1 1 0, यहाँ भी सेम है 1 1 0, बट एक बिट यहाँ 1 है और यहाँ पर क्या है 0। सो सिंगल बिट में एरर है, राइट। तो करेक्ट कोड ये होना, करेक्ट डिकोडेड बिट ये होनी चाहिए थी, जबकि रिसीव्ड मुझे ये मिली। तो इसने क्या कर दिया, एक बिट की एरर को करेक्ट भी कर दिया मेरे लिए, है ना। इस विटर्बी एल्गोरिथम ने एक बिट की एरर को मेरे लिए करेक्ट कर दिया। मुझे मिलना ये डेटा चाहिए थे। लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए तो। अगर मैं देखूं रिसीव्ड बिट मुझे मिले क्या थे, रिसीवर ने रिसीव करके दिया था मुझे 0 1 1 0, बट अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेलिस डायग्राम और अकॉर्डिंग टू विटर्बी एल्गोरिथम, इस डेटा के हिसाब से रिसीव्ड बिट होनी चाहिए थी 1 1 1 0। इसका मतलब कहीं एक बिट की एरर आ गई होगी, राइट। 0 की जो 1 ट्रांसमिट हुआ होगा ट्रांसमीटर से, वो 0 हो गया होगा बिकॉज ऑफ नॉइज, राइट। तो इसने मुझे सही बिट दे दी रिसीव करके 1 1 1 0, ये रिसीव्ड बिट होनी चाहिए थी। और ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिसीव्ड बिट मैं ट्रांसमिटेड बिट कैलकुलेट करूंगा। तो एक बिट की जो एरर आई है ना 0 यहाँ रिसीव हुआ है, ये एरर ये भी करेक्ट हो गई यहाँ पर। सो सिंगल बिट को करेक्ट भी कर दिया इसने। अब 1 1 जब मैं देख रहा था तो इनपुट क्या था 1, तो 1 आ गया। जब मैं 1 0 देख रहा था तो इनपुट क्या था 0, तो 0।
तो जो ट्रांसमिटेड बिट रही होंगी वो क्या रही होंगी 1 0। क्लियर है सर? अब बताओ मुझे समझ में आ गया? यस सर, आ गया। अब यस ये सर। आपके लिए एक मैं होम असाइनमेंट दे रहा हूं।